آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا جائے گا۔ ایک بوڑھا آدمی جو کہ بڑی محنت کے ساتھ خود بھی مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے بھیجے۔ چنانچہ وہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے، اس آرزو کو، اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو کسی اور ملک میں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب اس کا بیٹا وہاں سے تعلیم مکمل کر کے واپس آتا ہے تو وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے، پینٹ شرٹ میں ملبوس ہوتا ہے۔ اس کا والد اسے لینے کے لیے لاری اڈے پر یا ایئرپورٹ پر تشریف لے جاتا ہے۔ باپ جب وہاں پہنچتا ہے، وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک جاتی ہیں، اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اب ذرا حیرت کی بات یہ ہے، لڑکا اپنے والد کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ دوست اس سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ارے یہ آدمی جو تم سے اتنی محبت کر رہا ہے یہ کون ہے؟ لڑکا جو سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، وہ بڑا خوبصورت لباس میں ملبوس ہوتا ہے، وہ لڑکا اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھتا ہے جس نے کرتا پہنا ہے، جس نے دھوتی یعنی تہمت باندھی ہے۔ وہ حیرانی کے عالم میں کہتا ہے، یہ میرا نوکر ہے۔ عزیز طلبہ، حالانکہ وہ لڑکا اس کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ بوڑھا آدمی اس کا باپ ہوتا ہے۔ جی ہاں عزیز طلبہ، یہ پتہ ہے کون تھے؟ یہ ہمارے آج کے اکبر اعلی آبادی تھے۔ آج جن شاعر کا ہم نے تعارف پڑھنا ہے، یہ اسی شخص کی زندگی کی کہانی ہے۔ ذرا دیکھیے، میں آپ لوگوں سے سکرین شیئر کرتا ہوں، یہاں سکرین پر آپ دیکھیے گا وہ شخص یہ ہیں جن کی آج ہم نے شاعری پڑھنی ہے، اکبر اعلی آبادی۔ عزیز طلبہ، آپ کو سکرین پہ یہ بزرگ نظر آئے، یہ نامور انسان، یہ واقعہ اسی کی زندگی کا ہے۔ آج ہم ان پر بات کریں گے۔ جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو انہوں نے پھر ایک شعر کہا۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے حالات زندگی۔ جی، آپ کو میں لے گیا ان کی قبر پر۔ یہ قبر ہے اعلی آباد میں، اور اعلی آباد انڈیا میں موجود ایک علاقے کا نام ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ذرا قبر کے کتبے پر دیکھیے۔ قبر کے کتبے پر لکھا ہے، خان بہادر سید اکبر حسین، جج آنری فیلو، اعلی آباد یونیورسٹی، معروف با لسان العصر اکبر اعلی آبادی۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ سب سے پہلے ہم خان بہادر کے لفظ کو زیر بحث لاتے ہیں۔ خان بہادر دراصل میں یہ ایک اعزاز تھا جو انہیں انگریز حکومت کی طرف سے دیا گیا، اور سید اکبر حسین ان کا اصل نام ہے، جبکہ ان کا تخلص اور قلمی نام تھا اکبر اعلی آبادی قلمی نام، اور اکبر تخلص تھا۔ عزیز طلبہ، اعلی آبادی انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، جیسے آپ لوگوں میں سے کسی کا تعلق لاہور سے ہو تو وہ اپنے نام کے ساتھ لکھے فلاں لاہوری، یا فیصلہ آباد سے ہو فیصلہ آبادی، تو یا جو آخر میں لگائی جاتی ہے وہ نسبت کی ہے، علاقے کی نسبت کے لیے۔ تو آپ کا اصل نام سید اکبر حسین تھا۔ اب یہ آخری لفظ جو قبر کے کتبے پہ لکھا ہوا ہے، جج، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بوڑھا آدمی جس کی آپ نے تصویر دیکھی ہے، یہ وہی اکبر اعلی آبادی ہے جو ایک غریب گھر میں کب پیدا ہوا؟ 1845 میں پیدا ہوا، اور 1845 میں اعلی آباد میں پیدا ہونے والا یہ ننھا منا بچہ محنت کرتا ہے، ایسے خاندان میں آنکھ کھولتا ہے جو غریب ہے،
लेकिन इतनी गुर्बत, हालात इतने बुरे थे कि 15 साल की उम्र में उन्हें मुलाजमत करनी पड़ी पे नौकरी की, मुलाजमत इख्तियार की 15 साल की उम्र में। अजीज तलबा, इन्होंने अपनी इब्तदाई रस्मी तालीम में अरबी और फारसी और रियाजी का इल्म सीखा। फिर कहते हैं जिसकी मंजिल का, जिसके सफर में उसका इमाम उसका शौक हो जाए तो उसे मंजिल जरूर मिलती है। जिस मुसाफिर का शौक उसका इमाम बन जाए वो अपनी मंजिल को जरूर पाता है। अजीज तलबा, 15 साल की उम्र में मेहनत मजदूरी करने वाला ये इंसान बिलाखर हिम्मत नहीं आता, मेहनत करता है और मेहनत करते करते 1880 में यानी 1880 में वकालत का इम्तहान पास करके वकील बन जाता है। अभी भी मंजिल बहुत दूर है, ये तो मंजिल का पहला मुकाम था, अभी मेहनत मजीद जारी है। और फिर 1894 यानी 1894 में ये आदमी जज बनता है और जज के ओहदे पर फाइज होता है। 1903 में मुलाजमत से फारग होता है और मुलाजमत से फारग होकर ऑनरी फेलो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से मकामो मर्तबा मिलता है। अजीज तलबा, यहाँ पे भी बात पूरी नहीं होती, अपनी शायरी का लोया मनवाता है और फिर वक्त बताता है कि इस इंसान को दुनिया क्या कहती है, लिसानुल अस्र कहती है। लिसानुल अस्र अकबर आलाबादी का इन्हें खिताब दिया जाता है और दुनिया आज इन्हें लिसानुल अस्र अकबर आलाबादी के नाम से जानती है। अजीज तलबा, यहाँ पे कतबे पे आपको वफात लिखी हुई नजर आ रही है। 9 सितंबर 1921 में इन हस्ती का इंतकाल होता है और ये दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मजीद इनके तारुफ में मैंने आपके लिए क्या कुछ जमा कर रखा है। जी हाँ अजीज तलबा, इस अजीम शाहकार, इस अजीम इंसान की शाहकार किताबें जरा देखिए। ये मैंने आपको एक टाइटल स्क्रीन पर शेयर किया है। ये हिस्सा अव्वल है कुलियाते अकबर आलाबादी का। अजीज तलबा, हिस्सा अव्वल क्यों? याद रखिए आपकी कुलियात के कुल तकरीबन कितने 3 हिस्से हैं, तकरीबन 3, ठीक है। उनमें से ये पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा आपका शाया हो गया, पहला और दूसरा हिस्सा आपकी जिंदगी में शाया हुआ, तीसरा हिस्सा आपके इंतकाल के बाद शाया हुआ। ये जो आपको टाइटल नजर आ रहा है ये हिस्सा अव्वल का है। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये टाइटल हाथ से बना हुआ टाइटल है। जरा नजर लगाएं, ये जो डिजाइनिंग आपको नजर आ रही है ये उस दौर की है और उस दौर में अजीज तलबा हाथ से ही किताबें लिखी जाती थी। छापा खाना अभी बाजार में आया नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस अभी लगे नहीं थे। आप इसके आखिर में देखिए तबाए हश्तम लिखा हुआ है, ये 8वीं मर्तबा ये किताब शाया हुई और 1000 जिल्द यानी 1000 किताबें हर दफा शाया हुई। अजीज तलबा जरा आगे बढ़ते हैं, आपको इनका हिस्सा दोम दिखाते हैं। इस किताब का हिस्सा दोम यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये है हिस्सा दोम। यहाँ नीचे देखिए एडिशन पंजम और ये इलाहाबाद से छपा है। अजीज तलबा चलिए इसके बाद हम हिस्सा सोम की तरफ बढ़ते हैं, आपको हिस्सा सोम भी दिखा देते हैं जो कि इनके इंतकाल के बाद शाया हुआ। जरा यहाँ नजर लगाइए, ये है कुलियाते अकबर आलाबादी हिस्सा सोम। ये भी हाथ से बना हुआ टाइटल है, ये जितने फूल बूटे नक्श निगारी आपको नजर आ रही है ये लखनऊ से शाया हुआ। जी हाँ अजीज तलबा, ये था उस दौर की किताबें जिस दौर में अभी प्रिंटिंग प्रेस आया
नहीं था। आइए जरा आपको इनकी मजीद जिंदगी से आगाह करते हैं। जब कोई बड़ा आदमी दुनिया से जाता है तो उसके कहे हुए अल्फाज, लिखे हुए अल्फाज, बोले हुए अल्फाज उस कौम के लिए सरमाया हयात बन जाते हैं। स्क्रीन पर आपको एक टाइटल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है खतूते अकबर। यह है सैयद अकबर हुसैन आलाबादी का 1500 खतूत का इंतखाब। ये भी दिल्ली से छपा है अजीज तलबा, जिसमें आपके 1500 खतूत शामिल हैं। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है बज़्म अकबर। बज़्म अकबर ये किताब अकबर आलाबादी की सवाने हयात और कलाम पर तनकीद है। इसकी तारीफ की है मौलवी कमरुद्दीन अहमद साहिब बदायूनी। उन्होंने, जो कि बदायून भी एक इलाका है जो कि इंडिया में मौजूद है। मौलवी कमरुद्दीन ने BA BT अलैग जो लिखा हुआ है इससे मुराद अलीगढ़ से किया था। अजीज तलबा, ये किताब जरा यहाँ तारीख देखिए, 1944 में दूसरी मर्तबा शाया हुई। और कहाँ से शाया हुई? हिंद, दिल्ली से शाया हुई। अजीज तलबा, चलिए अब मजीद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये किताब आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। ये है अकबर आलाबादी, एक समाजी और सियासी मुताला। ये अकबर आलाबादी की जिंदगी पर लिखी गई किताब है जिसे डॉक्टर अफसा जफर ने लिखा है। अकबर आलाबादी की सवाने हयात इसमें मौजूद है। अजीज तलबा, ये थी अकबर आलाबादी की जिंदगी, इस अजीम शख्स की जिंदगी। चलिए आपको जरा इनके नमूने के चंद अशार सुनाते हैं ताकि आपकी तबीयत में शगुफ्तगी आए और आपको जरा इल्मो अदब के इस शाहकार इंसान से तारुफ हासिल करने में, शनासाई में लज्जत महसूस हो। देखिए जरा ये दिलचस्प शेर देखिए। जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगा और आपको आता क्या है। अजीज तलबा, दरअसल अकबर आलाबादी की शायरी की जब हम बात करेंगे, फन शायरी की बात करेंगे, तो आपने ये बात नहीं भूलनी कि अकबर आलाबादी की शायरी में तंज शामिल है। आपकी शायरी की वजह शोहरत ही तंजो मज़ा है, क्योंकि आपने तंजो मज़ा बहुत लिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने संजीदा शायरी नहीं की। अजीज तलबा, आपकी शायरी में गजल भी शामिल है, रुबायात भी शामिल है, कतात भी शामिल है। यहाँ जैसा कि आपने एक शेर देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आई होगी किसी को हिज्र में मौत, मुझको तो नींद भी नहीं आती। आई होगी किसी को हिज्र में मौत, मुझको तो नींद भी नहीं आती। चलिए जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए तंज कितना बड़ा माशरती हकीकत बयान की है। बताऊं आपको मरने के बाद क्या होगा? बताऊं आपको मरने के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा। यानी इंसान जितना मर्जी भी हो, यहाँ हमारे माशरे में इंसान की कदर नहीं। इंसान बहुत जल्दी कि हमारे माशरे की हकीकत सिर्फ यहाँ तक महदूद हो गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था आपकी शायरी में जा बजा तंज है। इस शेर को पढ़िए। हुए इस कदर मुहज्जब, कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में मेरे, मरे अस्पताल जाकर। अजीज तलबा, इस शेर में सबसे जो अहम बात आपको बताने वाली है वो ये कि मैंने जैसा कि कहा कि अकबर आलाबादी की शायरी में तंज पाया जाता है, तो यहाँ वो तंज साफ देखा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अकबर आलाबादी की शायरी में जो तंज पाया जाता है वो किस पर तंज करते हैं? अजीज तलबा, वो माशरे पर तंज करते हैं। वो 1857 की जंगे आजादी के दीदा शनीदा गवाह हैं।
उन्होंने वो सारे मनाजर देखे, अंग्रेज का आना, अपनी तहजीब का डूबते मरते जाना देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह तहजीब और सकाफत पर डाका डाला जा रहा है, किस तरह अंग्रेज मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारी नई नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही अकबर आलाबादी हैं जिन्होंने सर सैयद अहमद खान की भी मुखालफत की थी और सर सैयद अहमद खान को मना किया था कि आप अंग्रेजी तालीम की हिमायत ना करें। अब सवाल पैदा होता है क्यों मना किया? क्योंकि आपकी अपनी सोच थी, आपकी सोच थी कि क्या जो आदमी अंग्रेजी नहीं पढ़ता वो जाहिल रह जाएगा। ये कैसे बच्चे हैं कि जो अंग्रेजी पढ़ के अपने माँ बाप को जाहिल समझते हैं। इस तलबा, इसकी मिसाल आपने एक शेर में देख ली जो उनकी अपनी जिंदगी का एक वाकया है। वो औरत के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं औरत ने भी अपनी तहजीब शर्मो हया को छोड़ दिया। ये अंग्रेजी सकाफत हमारे घरों के माहौल को मुतासर कर रही है, हमारी जिंदगियों को मुतासर कर रही है, ये हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले एक शेर सुनाया, वो शेर क्या था? वो कि यहां देखिए, वहां उन्होंने कहा था कि ऐसी तमाम किताबें काबिले ज़ब्त हैं जिनको पढ़ के औलाद अपने माँ बाप को जाहिल अनपढ़ समझती है। जी हाँ अजीज तलबा, ये हमारे आज के दौर का भी मसला है। हमारे यहाँ भी अक्सर ये जुमला कहा जाता है कि मामा आपको क्या पता, बाबा आपको क्या पता, आपका दौर नहीं है, आप नहीं जानते, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। ये वो अल्फाज हैं जो उस दौर में जब अंग्रेजी नई नई राइज हो रही थी, तो अंग्रेजी नई नई हम पे तारी की जा रही थी, हम पे नाजिल हो रही थी, हमें चकड़ा जा रहा था, उस वक्त की भी ये बातें हैं। इस तलबा यहाँ ये शेर देखिए, जरूरी चीज है एक तजर्बा भी जिंदगानी में, जरूरी चीज है एक तजर्बा भी जिंदगानी में, तुझे ये डिग्रियां बूढ़ों का हमसन कर नहीं सकती। अजीज तलबा, कितना जबरदस्त शेर है। कहा कि ए नई नस्ल के नए नौजवानों बात सुनो, जिंदगी में एक तजर्बा भी जरूरी चीज है, और ये जो तुम डिग्रियां हासिल करते हो, ये हासिल करने के बाद बूढ़ों के बराबर नहीं हो सकते। हमसन का माना हम उम्र नहीं हो सकते, क्योंकि मन अकबर सिन्नन फाक्सिरहु तजरबतन, जो उम्र में तुझसे बड़ा है वो तजुर्बे में भी तुझसे बड़ा है। अजीज तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक किताब दिखाई जा रही है, ये अकबर आलाबादी की हयात और अदबी खिदमात पर है। इसके राइटर हैं डॉक्टर नसीर फातिमा काज़मी, जिन्होंने अकबर आलाबादी की हयात और खिदमात लिखी। अजीज तलबा, अकबर आलाबादी खुद भी वकील थे और बड़ा मशहूर जमाना शेर है, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। ये भी अकबर आलाबादी का शेर है। अकबर आलाबादी ने वकाला के बारे में कहा है, क्योंकि वो वकालत की हकीकत को बहुत अच्छे से जानते थे। जिस तलबा आगे बढ़ते हैं, ये मजीद तारुफ आपको, मजीद अशार, ये देखिए जरा, ये वो किताब है जो पाकिस्तान से अकबर कुलियात अकबर जिल्दोम शाया हुई, सारी जिल्दें पाकिस्तान से शाया हो चुकी हैं, चूंकि इस वक्त मेरे पास यही मैसर थी। जी तलबा, ये किताब भी रंगीन कलर की है, कलर टाइटल है, ये हमारे प्रिंटिंग प्रेस छापा खाना के दौर में शाया हुआ, हमारे जदीद दौर में, लेकिन ये भी दिल्ली से शाया हुई। ये जिल्द सोम है जिसमें रुबाइयात और कतात शामिल हैं। आइए जरा ये शेर देखिए, बड़ा जबरदस्त तंज है। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। इस तरह रपट इंग्लिश जबान का लफ्ज है, रिपोर्ट उस वक्त तंज किया कि ये कैसे लोग हैं, अंग्रेजी सकाफत के इतने दिल दादा होते जा रहे हैं कि खुदा का नाम लेना भी जुर्म बनता जा रहा है। अजीज तलबा, जरा आगे बढ़ते हैं। ये शेर सुनिए, ये शेर आपने फिल्मों और ड्रामों में भी बतौर डायलॉग सुना है।
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अजीज तलबा, ये अकबर आलाबादी का शेर है। ये देखिए जरा, दिलचस्प शेर है। ये मैंने आज से 10-15 साल पहले एक ट्रक के पीछे पड़ा था, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि कितनी कमाल की बात कही, लेकिन उस वक्त मेरे इल्म में ये नहीं था कि ये अकबर आलाबादी का शेर है। शेर देखिए, दुनिया में हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। अजीज तलबा, इस शेर को पढ़ने के साथ मुझे एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद आती है, जो मैं आपको सुनाता चला जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम यूं है कि मोमिन के लिए दुनिया ऐसे है, मोमिन दुनिया में ऐसे रहता है जैसे मुर्गाबी पानी में रहती है। जो वो पानी में रहती है, जब वो उड़ने लगती है, ये परिंदा उड़ने लगता है, तो उसके पर के साथ पानी का एक कतरा भी नहीं होता। अजीज तलबा, चलिए अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं। रहता है इबादत में हमें मौत का खटका। जरा तवज्जो दीजिएगा दूसरे मिसरे पर। हम याद करते हैं, कर लेना खुदा याद। कहीं हम खुद याद करते हैं मौत के खौफ से, ऐसा ना हो कि अल्लाह हमें याद कर ले और हमें दुनिया को छोड़ना पड़े। यह हमारी अंदरूनी कैफियत पर उन्होंने बहुत उम्दगी से बात की है। जी हाँ अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। अकबर आलाबादी का तारुफ आपने जाना बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूं अकबर आलाबादी की जिंदगी को जानकर, आपका तारुफ जानकर आपको बहुत खुशी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब अकबर आलाबादी को मजीद अच्छी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। जी अजीज तलबा, आप में से किसी का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कीजिए।